लेक्चर के दूसरे हाफ में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट क्या था कि जो एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम या तो माइक्रोफाइलस होगा या मेगाफाइलस होगा। और माइक्रोफाइलस का क्या मतलब है? लीव्स आर नॉट कंपाउंड, दैट मींस लीव्स आर सिंपल एंड दे आर minute in size, and these are found in first three divisions called Xylophyta, Lycophyta and Spinophyta. Whereas the aerial stem, if aerial stem is bearing larger leaves in some cases, for example in Cyathea, Dicksonia, Osmunda regalis. However, in majority of the cases in division Filicophyta, these larger leaves or these compound leaves, they arise directly from rhizome. Why? Because in majority of the members of division Filicophyta, aerial stem is not present. ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ आ चुका होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। दिस इज इट, दिस इज द मेंबर ऑफ डिवीजन साइलोफाइटा called Xylophytum. Here leaf is simple and small in size. This is second one is example from division Lycophyta or Lepidophyta, and it is Selaginella. Selaginella is also microphylous in nature. Why? You can see on aerial stem, leaves present are small in size and are simple, not compound. One more example from division Spinophyta or Arthrophyta in the form of equisetum. This is the aerial part of the sporophyte, showing monopodial branching system, and the branches they bear simple leaf. However, in such cases, leaves are present in whorl, many leaves fused together. ठीक है, leaves are very small in size. Thus, the members of Spinophyta or Arthrophyta are also said to be microphylous in nature. हालांकि इस केस में माइक्रोफाइलस जो ये छोटा सा सिंपल स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर्स है, इनका एक और खासियत है, दीज आर ऑलवेज नॉन ग्रीन इन नेचर. दैट इज व्हाई द एरियल स्टेम एंड द ब्रांचेस दे बिकम ग्रीन टू परफॉर्म photosynthesis. Now, next is the example of megaphylous leaves, megaphylous structures. These two are the members of division Spinophyta, division Pterophyta or Filicophyta. This genus is called Pteris, and this is Adiantum. Adiantum is in your syllabus. I will write in abbreviation. Adiantum capillus veneris. Here you can see there is no aerial stem. There is only underground stem called rhizome, from where this compound leaf is arising. In case of Pteris and in case of Adiantum, again a compound leaf is arising. This complete structure is a compound leaf बच्चों. ठीक है, और कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ क्या है, ये +1 2 में आप लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड द कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ और these larger leaves present in the members of division Filicophyta may again be unipinnately or bi or tripinnately compound leaves. Uni, bi or tripinnately compound leaves. Pteris is unipinnately, some of the species है ना. Pteris is unipinnately as visible here. ठीक है, यूनिपिनेट ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, या यूनिपिनेटली कंपाउंड होने का मतलब क्या है? दिस इज द कॉमन एक्सिस. ठीक है, जिसको हम पिटियोल बोलते हैं, अप टू द लेवल वेयर द फर्स्ट पेयर ऑफ लीफलेट्स अराइज, द एरिया बिटवीन rhizome and the first pair of leaves, this portion is called petiole, rest of the portion being called rachis. ठीक है,
और अगर रेकिस से डायरेक्टली लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं मेन एक्सिस से, ठीक है, सो सच टाइप्स आर कॉल्ड यूनिपिनेटली कंपाउंड लीव्स। और अगर ये मेन एक्सिस फिर फर्दर लेटरल एक्सिस शो करता है और उन लेटरल एक्सिस के ऊपर हमारे लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर द स्टॉक्ड लीफलेट्स, समटाइम्स लीफलेट्स आर सेसाइल, ठीक है। तो उस तरह के ब्रांचिंग पैटर्न को हम बोलेंगे बाइपिनेटली ब्रांचिंग पैटर्न, एंड हियर इन दिस केस दे आर सेड टू बी बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स। मैं एक बार फिर से बता देता हूं एक एग्जांपल देने के लिए। दिस इज यूनिपिनेट structure. Why? Because there is only central axis, ठीक है। in some cases there is central axis and lateral axis also, and from this lateral axis if leaflets arise, this is called bipinnately compound leaf, and sometimes what happens, this is central axis, central axis का मतलब ये बच्चों रेकिस और पिटियोल, ठीक है। इसमें से लेटरल एक्सिस निकला, ठीक है, और लेटरल एक्सिस से सेकेंडरी लेवल बोलेंगे हम इसको, है ना। दिस इज प्राइमरी लेवल एक्सिस, दिस इज सेकेंडरी लेवल एक्सिस, सेकेंडरी लेवल एक्सिस से फिर टर्सरी लेवल का एक और एक्सिस निकलेगा और उसके ऊपर हमारे लीफलेट्स आएंगे। तो इस तरह के ब्रांचिंग पैटर्न को हम बोलेंगे ट्राइपिनेटली ब्रांचिंग पैटर्न, और इस केस में हम इसको बोलेंगे ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीव्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ डिवीजन फिलिकोफाइटा ओनली, ओनली बच्चों, ठीक है, इन नन ऑफ द अदर ग्रुप्स सच लीव्स आर फाउंड। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। द मेगाफाइलस लीव्स आर यूनि बाई और ट्राइपिनेटली कंपाउंड, हैज ऑलरेडी बीन elaborated. However, in some cases megaphilous pteridophytes leaves are not compound. ये मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। ये दो एग्जांपल मैंने दिया है, एक स्कोलोपेंड्रियम के रूप में है, एस्प्लिनियम स्कोलोपेंड्रियम, इनफैक्ट दिस इज सम ऑर्नामेंटल फॉर्म आल्सो, ठीक है, और दूसरा है एस्प्लिनियम सेप्टेंट्रियोनेल। अगर आपको ये स्पीशीज याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आप एग्जांपल में सिंपल क्या लिख सकते हो, एस्प्लिनियम स्पीशीज, एंड व्हाट यू विल से इन दैट केस that in some members of Asplenium species the leaves, the larger leaves present are not compound. मैं आगे दो इमेजेस बता दूंगा, ये एस्प्लिनियम स्कोलोपेंड्रियम है, ठीक है, ये लीफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, दिस इज लार्जर लीफ स्ट्रक्चर बट हियर इट इज सिंपल लीफ, इट इज नॉट कंपाउंड लीफ, ठीक है। और सेकंड मैंने बताया था एक हाई एल्टीट्यूड टेरिडोफाइट इन द फॉर्म ऑफ एस्प्लिनियम सेप्टेंट्रियोनेल, ये, ठीक है, और ये स्कोलोपेंड्रियम का वेंट्रल पोर्शन है, लीफ का वेंट्रल पोर्शन, कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है बच्चों। जब ये टॉपिक शुरू करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल ऑफ द लार्जर लीफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉट कंपाउंड इन नेचर एंड व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ डिवीजन फिलिकोफाइटा इज Asplenium septentrionale. If you can't remember the species, you need not. You will simply write Asplenium species dot sp dot. ठीक है, इतने से आपका गुजारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। Now next point, I think a few points are remaining now. In some pteridophytes, leaves are non-green and thus for non-photosynthetic. Thus these are called scale leaves, and these are the characteristic feature of a division Spinophyta. दिस इज इट। ये जो एरियल एक्सिस नजर आ रहा है इसमें मेन स्टेम है, मेन स्टेम के लीव्स, और जो प्राइमरी ऑर्डर के लीव, ये ब्रांचेस, ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ऑर्डर, ठीक है, इसके लीव्स, या ब्रांचिंग ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसके लीव्स, दीज ऑल आर स्केली इन नेचर, दीज ऑल आर सिंपल लीव्स, minute leaves, scaly in nature. That means they cannot perform photosynthesis. That is why the aerial stem, it has to perform the action of photosynthesis for obtaining its organic nutrition or carbon nutrition. ये पॉइंट हो गया बच्चों, है ना। नॉन ग्रीन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर, thus called scale leaves, and example is equisetum. The sole
द ओनली लिविंग मेंबर फ्रॉम डिवीजन स्पिनोफाइटा। ये याद रखो बच्चों। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, that although vasculature is there, vasculature in the form of xylem and phloem is there, and this is called a simple stele or steeler system। ठीक है, इसको कंप्लीट हायर प्लांट्स की तरह लाइक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की तरह वस्कुलर सिस्टम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर जो जाइलम और फ्लोएम होता है वस्कुलर बंडल्स के रूप में होता है बच्चों। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू रहता है, और मोर ओवर दे शो कैम्बियल एक्टिविटी, vascular cambial activity। So in majority of the members of pteridophytes there is no vascular bundles। ठीक है, सेपरेट बंडल्स के रूप में नहीं होते हैं, हालांकि कुछ फॉर्म में होंगे, जैसे इक्विस्टीलिक नेचर है जहां पर, ठीक है, इक्विस्टील नामक एक स्टील पाया जाता है, कईयों में डिक्टियोस्टील पाया जाता है, वहां पर जाइलम और फ्लोएम सेपरेट पैचेस के रूप में, सेपरेट बंडल्स के रूप में नजर आएंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डिफरेंट बंडल्स फॉर्म नहीं करते हैं जाइलम और फ्लोएम, इसीलिए इसको सिंपल स्टील बोलते हैं इन टेरिडोफाइट्स। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय वैन टिघम एंड डाउलियट। ये डिटेल मैं तब कराऊंगा जब आप लोगों को स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स करवाया जाएगा। ठीक है, वैन टिघम, TIEGHAM, एंड डाउलियट, DOIOULIOT। डाउलियट इन्होंने ये टर्म इजाद किया था टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए। ठीक है, और हम लोगों को मालूम है बच्चों जो वस्कुलेचर है, वस्कुलेचर का मतलब फिर मैं वही बात बता दूंगा, जैसे ह्यूमंस के केस में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस थिंग्स थ्रू आउट द बॉडी, सच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स, एंड हियर इन टेरिडोफाइट्स xylem and phloem is present। xylem and phloem is present, but both lack some of the components। वो आगे के स्लाइड में हम लोग करेंगे। अब जो रेंज है टेरिडोफाइट्स में बच्चों, स्टीलर सिस्टम का, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स आर देयर इन टेरिडोफाइट्स। ये मैं अभी यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये लेक्चर फिर से लंबा चला जाएगा बच्चों। इसको मैं सेपरेटली जब हम वस्कुलर सिस्टम शुरू करेंगे, स्टीलर सिस्टम शुरू करेंगे टेरिडोफाइट्स का, वहां पर मैं एक एक करके बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, जो 4-5 टाइप का स्टील के नाम दिए हैं इनको याद रखना है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलिनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड यू स्टील। तो ये नाम आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज द रेंज ऑफ स्टीलर सिस्टम फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। कुछ और तरह के भी स्टील्स होते हैं, जैसे प्रोटोस्टील के फर्दर टाइप्स हैं, साइफोनोस्टील के फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, साइफोनोस्टील के टाइप्स जैसे सोलिनोस्टील बनता है, डिक्टियोस्टील बनता है। ठीक है, तो ये डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, आप लोगों ने विद एग्जांपल्स याद करो। ठीक है, याद करने का कोशिश करो। हाँ, फिर अगेन एडियंटम का मैंने स्पीशीज दिया हुआ है, अगर एडियंटम का स्पीशीज याद नहीं हो पाता है तो आप सिंपली एडियंटम SP डॉट लिख सकते हो। SP डॉट का मतलब है स्पीशीज का एब्रिवेटेड फॉर्म। ठीक है, और इक्विसिटम में यू स्टील नजर आता है हमको। तो दिस इज द रेंज ऑफ द स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। ऑल्दो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है। जाइलम के भी कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है, फ्लोएम के भी कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है। अब ये इसके डिटेल भी आपने +1-2 में पढ़ लिया है बच्चों, है ना। परमानेंट टिश्यूज का कैटेगरी में ये जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, और जाइलम किस किस चीज से बना होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सो इन टेरिडोफाइट्स xylem tracheids are present, xylem tracheids are present along with xylem parenchyma, whereas xylem vessels are absent। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में xylem vessels प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, हालांकि फिर एक और ये फैक्ट फाइल दिया हुआ है कि some primitive type of vessels have been reported from Selaginella and Equisetum। ये याद करना चाहो तो कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो छोड़ देना है बच्चों, कोई जरूरत ज्यादा नहीं है। आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, जाइलम कंसिस्ट ऑफ
xylem tracheids and xylem parenchyma in case of pteridophytes, and it lacks xylem vessels. Similarly, जो phloem portion आता है बच्चों, फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों? ऑर्गेनिक फूड अलोंग विद वाटर. और जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? मिनरल फूड अलोंग विद वाटर. तो जो फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं कुछ, है ना, जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको सीव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हम सीव ट्यूब्स भी बोलते हैं, सीव सेल्स भी बोलते हैं. उसके साथ ही एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, जिनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स. जैसे ये आपका मेन सेल आ गया आपका सीव सेल के रूप में, उसी के साथ ही एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर रहता है छोटा सा, इसको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फ्लोएम नजर आएगा उनमें कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, है ना. असल में जो फ्लोएम 5 कंपोनेंट से बना होता है. एक आएगा आपका सीव एलिमेंट्स, दूसरा आएगा आपका कंपेनियन सेल्स, तीसरा आएगा आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा, चौथा आएगा आपका फ्लोएम फाइबर्स, और पांचवा आता है ट्रांसफर सेल्स बोल के होता है. ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स के केस में कंपेनियन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट. सो आई थिंक दिस इज इट. इसके साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है. लेक्चर हमारा खत्म हो गया है. उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से पढ़ लोगे. कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप कर देना है. मैं हमेशा से सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी आपके क्वेरीज का मैं आंसर देने के लिए तैयार रहूंगा बच्चों. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से पढ़ लोगे बच्चों इस टॉपिक को. ठीक है, क्योंकि जब हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, टाइप स्टडी में ये जो जनरलाइज स्टडीज है ये बहुत हेल्प करता है. मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा बच्चों. ठीक है, तो डेली का लेक्चर डेली देख लिया करो, मिस नहीं करना है बच्चों. तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं. खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कोविड-19 से बचे रहिए मेरे प्यारे बच्चों. हैव अ नाइस डे.